My lovely students, welcome to Mathological. Let us start today's session on functions and graphs. So if you have not already subscribed to the YouTube channel, make sure to subscribe to it as well as join the Telegram channel Mathological. My name is Adit Kumar Tiwari and let us start the session. The first question is a function fx is defined for all x greater than 0 and this satisfies the condition that f of x upon y is equal to f of x minus f of y. So what is the exact value of the expression given? Given है कि fx is defined for all positive x and condition is functional equation is f of x upon y is equal to f of x minus f of y. अब ऐसा एक्सप्रेशन तो हमने देखा नहीं अब तक, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा. तो f of x by y is equal to fx minus f of y. ठीक है, so if somehow we take fy to the left hand side, then this equation becomes f of x upon y plus f of y and this is equal to fx. अब क्या इस इक्वेशन को समझ पा रहे हो? Are you able to identify this equation? ठीक है, pause the video for some time and try to connect it with the special function equations that we did yesterday. क्या कनेक्ट कर पा रहे हो कि f of x by y plus fy is equal to fx. If you are able to recall, we did an equation yesterday, f of a plus f of b equal to f of ab. a और b की जगह x और y थे, but क्या appreciate कर पा रहे हो? This is same as that. f of a plus f of b is equal to f of ab. Isn't it so? Where a is equal to x upon y, b is equal to y. तो a into b हो जाएगा x upon y into y, यानी कि x into b will be equal to x. सेम इक्वेशन तो है, और अगर सेम इक्वेशन है तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन विल बी f of x should be equal to some constant times log of x. The general solution for this equation will be f of x is equal to k times log of x. Isn't it so? Definitely डोमेन क्या होगा x का? x should be positive value greater than 0 because log of x हम ले रहे हैं यहाँ पे. ओके, और क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन f of something x plus root of x square plus 1 plus f of 1 by that. Basically this is if we consider x plus root of x square plus 1 equal to t. The question is asking what is f of t plus f of 1 upon t. Isn't it so? Basically f of t will be k times log of t and f of 1 by t will be k times log of 1 by t and 1 by t is t to the power minus 1. t to the power minus 1, तो इफेक्टिवली अगर k हमने कॉमन ले लिया तो इनसाइड द ब्रैकेट विल बी log of t minus log of t. बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू 0. आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, इक्वल टू 0. f of x plus f of 1 by x will be equal to 0 because f of x is k times log of x और f of 1 by x will be k times log of x to the power minus 1 यानी minus k log x. So effectively f of x plus f of 1 by x will be equal to 0 in this case. Okay, next question करते हैं. The function f of x is equal to log of x plus root of x square plus 1 is an even function or odd function or periodic function or neither even nor odd. क्या होगा? Where fx is equal to root of log of x plus root of x square plus 1. So if fx is log of x plus root of x square plus 1, even odd चेक करने के लिए क्या करेंगे? f of minus x आइडेंटिफाई करेंगे. तो f of minus x will be equal to log of x की जगह minus x पुट कर दोगे, minus x plus minus x whole square will be x square only root of x square plus 1. तो शक्ल से तो नहीं लग रहा है f of minus x, शक्ल से तो माइनस ऑफ एफ नहीं लग रहा है, fx भी नहीं लग रहा है और माइनस ऑफ एफ भी नहीं लग रहा है. बट एक प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा. देखो x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेसिकली व्हेन वी स्क्वायर x दिस बिकम्स x स्क्वायर and root of x square plus 1 का स्क्वायर करने पे क्या बनेगा? x square plus 1. So there is a difference of 1 between them, isn't it so? Basically these two, x plus root of x square plus 1 and minus x plus root of x square plus 1, these two are conjugate of each other. If you multiply these two values, this is a plus b into a minus b, so becomes x square with the minus sign, क्योंकि बेसिकली रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. So the product becomes equal to 1. यानी कि log of minus x plus root of x square plus 1 is nothing but basically log of
1 अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 which is minus of log x plus root of x square plus 1 and hence this is equal to minus of f of x. F of minus x is equal to minus of fx and hence this should be odd function. तो कहीं पे भी ये शक्ल दिखे ना तुम्हें x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है. ओके क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. A function fx satisfies f of x into f of 1 by x is equal to fx plus f of 1 by x. So given the additional constraint f2 is equal to 65, what will be value of f3? We've already seen that general solution क्या होगा इस केस में. If f of x into f of 1 by x that is equal to fx plus f of 1 by x, so solution for fx will be equal to 1 plus minus x to the power n. Where n is an integer, isn't it? और f2 हमारा इक्वल टू 65 है. f of 2 will be equal to 1 plus minus 2 to the power n equal to 65 and hence plus minus 2 to the power n is equal to 65 minus 1 64. तो डेफिनेटली माइनस साइन तो नहीं होगा यहाँ पे 2 to the power n होगा विथ प्लस साइन दैट इज इक्वल टू 64 और 64 इज 2 to the power 6 यानी कि n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. तो डेफिनेटली हमारा fx बिकम्स इक्वल टू 1 प्लस x to the power 6 1 plus x to the power 6 and hence f of 3 will be equal to 1 plus 3 to the power 6. 3 cube is 27, 27 square is 729 plus 1, 730 will be the answer. 730 will be the answer in this case. Is that clear? और अगर लास्ट सेशन चेकआउट नहीं किया तो एक बार लास्ट सेशन चेकआउट कर लेना क्योंकि उसके बेसिस पे ही हमें सॉल्यूशन बता रहे हैं. लास्ट सेशन में हमने ये सब चीज़ें सीखी हैं. ओके क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, if 2 times f of x minus f of 1 by x and this is equal to 2x square, in such a case find 2 times f of 1. What will be value of 2 times f of 1? अगर हमें गिवन है 2 times fx minus f of 1 by x that is equal to x square. अब लास्ट टाइम ने स्पेशल फंक्शन इक्वेशंस की थी बट ये इक्वेशन तो नहीं किया था. तो ऐसे इक्वेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समहाउ f of x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. फॉर सच अ इक्वेशन वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ f of x. ठीक है, पहले क्योंकि हमें यहाँ पे f x नहीं निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट 2 times f of 1. isn't it? सो f1 निकालना होगा तो वो तो निकल आएगा. f1 निकालना तो आसान है बिकॉज अगर इस इक्वेशन में हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे f of 1 by x भी क्या हो जाएगा, 1 by 1 will also be equal to 1. तो f1 तो स्ट्रेट अवे निकल आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. 2 times f of 1 minus f of 1 by 1 which is also equal to 1 becomes equal to 2 into 1 square. जैसे हमने x equal to 1 पुट किया तो दिस becomes 2 times f1 minus f1 यानी कि f of 1 will be equal to 2 only. अगर सिर्फ f1 चाहिए होता तब तो फिर कुछ भी नहीं करना था, बट यहाँ पे हमें f1 नहीं चाहिए, f of f1 चाहिए, यानी कि उसके लिए हमें समाउ fx निकालना पड़ेगा क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, f of f1 क्या होगा बेसिकली, सिंस f1 is 2 तो f of 2 चाहिए अल्टीमेटली क्या वैल्यू होगा, और f2 x इक्वल टू 2 पुट करके नहीं निकाल पाओगे. तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली fx की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो पहला इक्वेशन हमारा है क्लियरली गिवन 2 times fx minus f of 1 by x is equal to 2x square. और सेकंड इक्वेशन के लिए विल बी पुटिंग x इक्वल टू 1 by x, क्योंकि जैसे ही हम x इक्वल टू 1 by x पुट करेंगे तो हमें अगेन फिर fx और f of 1 by x में एक और इक्वेशन मिल जाएगा और फिर f of 1 by x को रिमूव करके हम अपना इक्वेशन fx में ले आएंगे. ठीक है, सो सेकंड इक्वेशन में विल बी पुटिंग x इक्वल टू 1 by x, तो 2 times f of 1 by x माइनस f of 1 by 1 by x क्या हो जाएगा, अगेन x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x क्या है 1 by x है 1 by x होल स्क्वायर यानी 2 अपॉन x स्क्वायर. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन एंड वी नीड टू रिमूव f of 1 by x. तो कैसे रिमूव होगा, सेकंड इक्वेशन में आ रहा है 2 टाइम्स f of 1 by x, फर्स्ट में आ रहा है माइनस f of 1 by x, तो फर्स्ट इक्वेशन में लेट अस मल्टीप्लाई बाई 2, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो दिस विल बिकम 2 इंटू -1 यानी -2 टाइम्स एफ ऑफ 1/x और नीचे अपना +2 टाइम्स है, तो बोथ इक्वेशंस को ऐड कर देंगे. बेसिकली वी मल्टीप्लाइड फर्स्ट इक्वेशन बाई 2 एंड सेकंड इक्वेशन को वैसा का वैसा रहने देंगे और वो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे. तो हमारा 2 इंटू 2 4 टाइम्स एफ एक्स -1 टाइम्स एफ एक्स 4 -1 3 टाइम्स एफ एक्स और 2 times f of 1/x with a negative sign plus 2 times f of 1/x. This will get cancelled out. So this will be equal to 2 into 2x square यानी 4x square minus 2 upon x square. ओके सॉरी प्लस आएगा ऐड किया हमने इक्वेशंस को. 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज 3 टाइम्स एफ एक्स. तो यहाँ से एफ एक्स हमें इक्वल टू मिल जाएगा 1/3 टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, या फिर 2 और कॉमन लेते हैं, 2/3 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हमें अल्टीमेटली चाहिए f of 1 या बेसिकली f(2) चाहिए, तो स्ट्रेट अप f(2) निकाल लेंगे. ठीक है, f(2) नाउ विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर. तो 4 इंटू स्क्वायर 16 प्लस 1/2 यानी 1/3 इंटू 33/2 विच विल बी 11/2 एंड हेंस 2 टाइम्स f स्क्वायर 1 नहीं 2 टाइम्स f(1). ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 11/2 एंड हेंस इक्वल टू 11. आंसर हमारा इक्वल टू 11 आ जाएगा. क्लियर? ठीक है, और जनरल इक्वेशन हमारा एफ एक्स का इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया. एफ एक्स इक्वल टू 2/3 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question is, if it is given that f of x plus y is equal to fx plus f of y for all x and y that are real, and also given that f of 4 is equal to 25. Additionally, g of x into y is equal to gx into gy, and g of 2.5, this is equal to f of 1. Then we need to find out gof of 8 plus fog of 8. What will be value of gof of 8 plus fog of 8 in this case? हमें गिवन है f of x plus y is equal to fx plus fy, and if f of x plus y is equal to fx plus fy, in such a case हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर fx क्या आ जाएगा? जनरल सॉल्यूशन फॉर fx will be equal to f of x will be equal to kx some constant type x, fx equal to kx आ जाएगा, and hence f4 will be equal to k into 4 यानी 4k. 4k is equal to 25, तो यहाँ से हमें k द कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा, k will be equal to 25/4. Additionally we know g of xy is equal to gx into gy. तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा? दिस विल बी पावर फंक्शन g of xy is equal to gx into gy. दिस विल बी पावर फंक्शन. तो gx हमारा आ जाएगा x to the power n. एंड गिवन है g of 2.5 is equal to f of 1. f1 will be k equal to k is 25/4. So g of 2.5, this is equal to 25/4, which is f1. g of 2.5 is equal to 25/4 और 2.5 क्या है? बेसिकली 5/2 है, तो 5/2 to the power n, x to the power n यानी 5/2 to the power n is equal to 25/4. 25/4 है हमारा 5/2 होल स्क्वायर्ड. तो यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल गया कि n इज इक्वल टू आ गया. n इज इक्वल टू है यानी कि gx का वैल्यू इज x to the power n which is x square. fx is 25/4 times x and gx is x square. fx और gx का वैल्यू मिल गया है, तो अब g of gof of x और fog of x दोनों ही निकाल पाएंगे. तो gof of 8
प्लस फॉग ऑफ 8 चाहिए हमको। तो g ऑफ f8 का वैल्यू क्या होगा? f ऑफ 8 विल बी 25/4 इंटू 8, g ऑफ 25/4 इंटू 8 प्लस f ऑफ g ऑफ 8, और g ऑफ 8 होगा हमारा एक्स स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर, तो 25 इंटू 2 g ऑफ 50 प्लस f ऑफ 64। g of 50 is 50 square या 2500, और f of 64 will be 25/4 into 64. 25 into 16 will be 400. 2500 plus 400, the answer will be 2900. So the value of the sum will be equal to 2900 in this case. Okay. Clear है? 2900. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is f of x plus 1 is equal to f of x plus f of 1, and fx is defined for all values of x that are a natural number. All values of x that are a natural number. And if also given as that f of x, f of 4, this is equal to 36, and also given that f of some constant k is equal to 12, then find out value of f of k plus I, where I is from 1 to 5. Sum of all values of f ranging from I is equal to 1 to I is equal to 5, f of k plus I फाइंड आउट करना है हमें। पहले तो हमें यहाँ पे एफ एक्स निकालना पड़ेगा, और हमें गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन हमें ये है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स दैट आर नेचुरल नंबर्स। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू अगर हमें गिवन है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 क्या आ रहा है? दिस इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 क्या होगा? कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू होगा, तो एफ ऑफ 1 को हम मान लेते हैं, लेट अस से सी, एफ 1 इज सम कॉन्स्टेंट, f of x plus 1 will be equal to fx plus some constant, isn't it so? ठीक है, f of x plus 2 क्या हो जाएगा? क्योंकि x तो एक वेरिएबल है, x कोई कांस्टेंट नहीं है, x तो एक वेरिएबल है, तो f of x plus 2 क्या हो जाएगा? अगर x एक वेरिएबल है तो x कैन टेक वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हमने x का पहले वैल्यू 4 लिया तो नेक्स्ट वैल्यू 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज x हम एक नेचुरल नंबर रखते हैं, isn't it so? तो कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो वी कैन राइट x plus 2, ब्रेक कर सकते हैं इसको x plus 1 plus 1, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू f of x plus 1 plus 1। तो क्या अब ये हमारा सिमिलर नहीं हो जाएगा जैसे हमारा इक्वेशन गिवन है? तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ एक्स प्लस 1 हमारा ऑलरेडी है एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो दिस विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट, और एफ 1 हमारा इक्वल टू दैट कॉन्स्टेंट है, तो नाउ दिस विल बी 2 टाइम्स एफ ऑफ 1। तो क्या पैटर्न देख पा रहे हो? सिमिलरली अगर हम ऑब्जर्व करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा? दैट विल बी एफ एक्स प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 एंड सो ऑन। बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस एन विल बी इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन टाइम्स एफ ऑफ 1, isn't it so? क्लियर है? तो ये हमारा लीनियर फंक्शन बन रहा है एक तरह से, ये हमारा एक लीनियर फंक्शन बन रहा है, isn't it so? क्या है? क्लियर है? तो अगर हमारा f1 इक्वल टू सम कांस्टेंट है, f2 क्या होगा? f2 विल बी बेसिकली x इक्वल 1 पुट कर रहे हो, f2 विल बी 2 टाइम्स f1, f2 विल बी f2 यानी f of 1 plus 1, तो f1 plus f1 यानी 2 टाइम्स f1, so this will be 2c, f3 will be f2 plus f1 यानी 3 टाइम्स c, एंड सो ऑन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? fx विल बी इक्वल टू f1 इंटू एक्स, जहाँ f1 इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, f1 इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू, और हमें गिवन क्या है? fk इज इक्वल टू 12 गिवन है हमें, और f of 4 इज इक्वल टू 36 गिवन है, तो हम मान लेते हैं एफ एक्स हमारा इक्वल टू एफ वन इंटू एक्स है, और एफ वन इक्वल टू सी है, तो सी इंटू एक्स हो गया।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, क्योंकि के इसलिए नहीं मान रहे इस बार क्योंकि एफ के हमें गिवन है, तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अपना कॉन्स्टेंट जो एज्यूम करना है उसकी जगह हम सी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, कोई वैल्यू अननोन मान लो अपार्ट फ्रॉम के। ठीक है, सो गिवन है हमें एफ ऑफ 4, पहले इसको यूज़ करेंगे बिकॉज एफ ऑफ के इक्वल टू 12 डालने से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि के भी अननोन है और सी भी अननोन है, तो कोई फायदा होगा नहीं यहाँ से। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 36, बिकॉज यहाँ पे एक ही अननोन आने वाला, दैट विल बी इक्वल टू सी। तो एफ फोर क्या होगा, एफ ऑफ 4 विल बी सी इंटू 4 यानी कि 4c, तो एफ ऑफ 4c दिस विल बी इक्वल टू 36। और एफ ऑफ 4c क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज सी टाइम्स एक्स, तो एफ ऑफ 4c विल बी 4c टाइम्स सी, दिस इज 36, तो 4c स्क्वायर दिस इज 36, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड हेंस यहाँ से हमें c इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस 3। तो c कैन बी इधर प्लस 3 और -3, c हमारा +3 भी हो सकता है या फिर -3 भी हो सकता है। फिर अब यूज़ करेंगे हम इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट एफ के इज इक्वल टू 12, एफ ऑफ के इज इक्वल टू 12, एफ के क्या होगा, बेसिकली एफ एक्स कैन बी इक्वल टू प्लस माइनस 3x नाउ, और एफ के इक्वल टू हमें गिवन है 12, एफ ऑफ के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3 टाइम्स के एंड दिस इज इक्वल टू 12, तो यहाँ से के विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4, या तो +4 आएगा या फिर -4 आएगा, इजंट इट सो। और क्वेश्चन की डेफिनेशन पे फिर से एक बार जाते हैं। क्वेश्चन डेफिनेशन साफ साफ कह रही है कि दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स दैट आर नेचुरल नंबर्स। तो इफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर तो के हमारा क्या है, के मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर होगा तो के मस्ट बी इक्वल टू +4, और अगर के इक्वल टू +4 है तो यहाँ से एक बात और डेफिनेट होगी, जैसे हमने के इक्वल टू +4 रखेंगे तो हमारा जो कांस्टेंट है सी की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, +3 आ जाएगी, क्योंकि हमारा एफ ऑफ के तो 12 है, तो सी इक्वल टू -3 हो नहीं सकता। के इक्वल टू 4 है तो यहाँ से सी इक्वल टू +3 आ जाएगा। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये समझ पा रहे हो? तो हमने क्या किया, पहले हमने ऑब्जर्व किया पैटर्न फंक्शन का, जो कि सिमिलर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई वैसा ही है, बस यहाँ पे क्या था, वाई की जगह पे एक कांस्टेंट था। तो हमने पैटर्न ऑब्जर्व किया, f1 की वैल्यू अगर हमने ली लेट अस से सम कांस्टेंट c, तो f2 हमारा क्या आ जाएगा, f2 विल बी यानी f ऑफ 1 प्लस 1, तो f ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा f1 प्लस f1 यानी कि बेसिकली 2 टाइम्स f1, तो दैट विल बी 2 टाइम्स द कांस्टेंट, f3 विल बी 3 टाइम्स f1 यानी कि 3 टाइम्स द कांस्टेंट एंड सो ऑन। तो fx हमारा आ जाएगा c टाइम्स x, जनरल एक्सप्रेशन आ गया हमारा ये, पर यहाँ से c की वैल्यू तो मिली नहीं, अब हमें c की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। अब एफ के इक्वल टू 12 में k हमारा एक अननोन है, अगर हम यहाँ पे एफ के को सी इंटू के रखेंगे तो सी इंटू के इक्वल टू 12 आ जाएगा, जहाँ पे सी भी अननोन है के भी अननोन है, वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो हमने यूज़ किया एफ ऑफ 4 को, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास एक ही अननोन रहता, एक इक्वेशन एक अननोन काम हो जाता, तो डेफिनेटली वहाँ पे एफ ऑफ 4 बिकेम इक्वल टू एफ ऑफ 4c, दैट बिकेम इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 36, c स्क्वायर इक्वल टू 9, यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया c का +-3, तो c कुड हैव बीन +3 और -3 दोनों वैल्यूज पॉसिबल था। अब हमने पुट किया एफ के में ये वैल्यू, एफ ऑफ के इक्वल टू 12, एफ ऑफ के बिकेम इक्वल टू सी इंटू के, और सी हमारा +-3 हो सकता है, +-3 इंटू के, +-3 इंटू के बिकेम इक्वल टू 12, तो के यहाँ से आ गया +4 और -4, बट सिंस हमारा फंक्शन डिफाइंड है सिर्फ और सिर्फ x, जब हमारा एक नेचुरल नंबर है तो के मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर, के मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, तो के इक्वल टू +4 होगा, और जैसे ही के इक्वल टू +4 आ गया वापस से पुट कर दो अपनी इक्वेशन में +-3 के इक्वल टू 12 में, जैसे ही के इक्वल टू 4 पुट करोगे तो ये आ गया +-3 इंटू 4, और 12 कब आएगा, जब +3 इंटू +4 करोगे, 3 इंटू 4 करोगे तो +3 ही हमारा सी कांस्टेंट का वैल्यू आएगा, -3 नहीं होगा, सी इक्वल टू +3 आ गया, तो यानी कि हमारा एफ एक्स इक्वल टू है 3x। इतना बात यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपना फाइनल जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसको सॉल्व करते हैं कि सिग्मा एफ ऑफ के प्लस आई क्या होगा, आई इज फ्रॉम 1 to 5, सिग्मा यानी कि समेशन करना है एफ की वैल्यूज का, जहाँ पे के क्या है, के इक्वल टू 4 है, तो बेसिकली दिस इज सिग्मा एफ ऑफ 4 प्लस आई, आई हमारा रेंज कर रहा है 1 से लेके 5 तक। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ ऑफ 4 प्लस आई, 4 प्लस आई हमारा इनपुट है, तो 3 टाइम्स एक्स, तो 3 टाइम्स 4 प्लस आई हो जाएगा, और आई हमारा है 1 से लेके 5 तक, 3 इंटू 4 विल बी 12, बट 12 सिग्मा के अंदर ही है, 12 + 3i, एंड आई विल बी इक्वल टू फ्रॉम 1 to 5, तो टोटल 5 हमारे टर्म्स बनेंगे, हर एक टर्म में 12 आएगा, तो 12 तो स्ट्रेट अवे सिग्मा के बाहर आ जाएगा, बट 12 इंटू 5 बाहर आएगा, क्योंकि 12 हमारा पहले टर्म में भी आएगा, सेकंड टर्म में भी आएगा, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म में, 5th टर्म में, 12 इंटू 5 प्लस 3 टाइम्स
I equal to 1 plus I equal to 2 plus 3 plus 4 plus 5. So 12 into 5 will be 60 plus 3 into summation from 1 to 5, 3 into 15. 60 plus 45, answer will be 105. Answer will be 105 in this case. क्या ये क्लियर है? ठीक है, और फिर भी कंफ्यूजन हो तो पहले सारे के सारे टर्म्स निकाल लो कि पहले आई इक्वल 1 पुट करोगे, 12 प्लस 3 15 आ जाएगा, 15 देन 18 देन 21 24 25, तो 21 into 5 our summation will be 105. Is that clear? क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ओके, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन इन दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे एंड आई बिलीव कि जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए इस सेशन में वो सारे के सारे समझ में आए होंगे. फिर भी किसी क्वेश्चन में कहीं पे डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एज वेल एंड गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें सेशन कैसा लगा और सारे के सारे क्वेश्चन कैसे लगे. चलो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. और अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर से जरूर करना है. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना. दैट्स ऑल, टेक केयर.